of asking DBMS subject is high as far as the upcoming Capgemini test is being considered. So we will start with the queries part. आप में से बहुत लोगों ने इन्फीटीक्यू भी दिया होगा, तो weightage of the query part would be very high, relatively high as considered to other topics. So we will start with the Capgemini preparation for with the SQL queries part. SQL queries पे हम लोग ध्यान देंगे. The agenda would be like this: कि a question would float against the screen, and you have to answer the question in 1 minute. After answering the question, if there's some doubt, then you can type the doubt in the chat box only, and you have to type your answer in the chat box only. We will address your query if there exists some query through the chat box. Okay, and if still some doubt arises, then we will share with you our alternate number. You can contact us within the time limit, and we will solve your queries. So I think we should wait for 1 to 2 minutes so that other student can also join the session. Kindly ask your batchmate to join as soon as possible. Once again, आप लोगों ने मीटिंग अटेंड करी होगी कैपजेमिनी की, तो DBMS, the HR has said कि DBMS would be the prominent part. She has mentioned DBMS subject. So we will start with the queries part. हम query करेंगे SQL query. First we will start with the SQL queries. We will handle your doubts, and we will try to clear your concept with the help of questions only. All are requested to be mute themselves till the entire session end. You can raise your doubt and you can raise your answer in the chat box only. We will handle the doubt as well as the answers. Since most of the students have joined, I think we should start the session. Puneet sir, are you there? Yes sir, yes sir. Over to Puneet sir. साउंड सही आ रहा है सर? हाँ सर, बिल्कुल परफेक्ट. ओके ओके, स्टार्ट करते हैं. मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन. ठीक है सर. क्या स्क्रीन विजिबल हो रहा है? हाँ जी सर. ओके. तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? स्टार्ट करते हैं आज DBMS की क्लास. एज आपने कैपजेमिनी का सेमिनार अटेंड किया था, तो उसमें बताया भी गया था कि DBMS इज द मेजर पार्ट ऑफ द टेस्ट. DBMS के क्वेश्चंस भी आएंगे. तो यहाँ पे हम DBMS के क्वेश्चन कंसेप्ट कवर करेंगे थ्रू क्वेश्चंस. ओके, हम क्वेश्चंस फ्लोट करेंगे. यू हैव टू राइट आंसर इन द चैट बॉक्स, देन आई विल एक्सप्लेन द कंसेप्ट. कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं. सो और मेन मोटिव इज टू क्लियर योर ऑल डाउट्स. ये मानकर चलिए DBMS में अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, बेसिक कंसेप्ट, तो आप SQL क्वेरीज को आंसर कर सकते हैं. तो शैल आई स्टार्ट मनीष सर? यस सर, यस सर. ओके ओके. सो स्टूडेंट, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग टू योर स्क्रीन. नाउ स्टार्ट. टाइमर हैज बीन स्टार्ट. Type your answer in the chat box. Sir, 3 students have answered. In fact, 4 students have given the answer C. 10 to 12 students have answered C. In meantime, 1 student have answered B. So answers are coming. Most of the students, Shivani, Saloni, Vipul, Akshat, Suyesh, Swati, Adhikari, all are answering typing C. एक बच्चे ने भी B दोबारा दिया है, वरुण ने. Otherwise, I think I have seen around 70 to 80 questions बच्चों ने response किया है, and 4 of them have opted B. Otherwise, most of them have opted C as an answer. Okay sir, okay. Now answer is coming to the screen.
सो दिस इज द आंसर, आंसर सी इज करेक्ट। तो अब मैं इसको कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि इसमें काफी क्वेश्चंस कवर होते हैं और एक क्वेश्चन इसमें से आप मानकर चलिए जरूर आएगा, बेसिक क्वेश्चन। सो तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं एसक्यूएल कमांड से, ठीक है। एसक्यूएल कमांड्स कितने टाइप के होते हैं? एसक्यूएल कमांड्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो सबसे पहला कमांड आता है आपका डीडीएल कमांड। तो एज द नेम सजेस्ट, ये किस लिए यूज होता है बच्चों? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी डेटा को डिफाइन करने के लिए। तो डेटा हमारा कहाँ स्टोर होता है स्टूडेंट्स? डेटाबेस में, टेबल्स में। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस कमांड्स जो होते हैं वो डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए यूज किए जाते हैं, डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ऑपरेशंस करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो डीडीएल कमांड हमेशा याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट पर वर्क करते हैं, डेटा पर नहीं, यानी टेबल पर वर्क करेंगे, डेटा पर वर्क नहीं करेंगे। टेबल के अंदर जो डेटा होता है उस पर वर्क नहीं करेंगे, टेबल के स्ट्रक्चर पर वर्क करेंगे, टेबल पर वर्क करेंगे। तो डीडीएल में पहला कमांड होता है स्टूडेंट्स क्रिएट, पहला क्रिएट कमांड होता है, टेबल को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। देन ऑल्टर, सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है ऑल्टर कमांड। ऑल्टर का मतलब क्या हुआ बच्चों? स्ट्रक्चर को चेंज करना, टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करना। अब ऑल्टर में हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहला टास्क, ऑल्टर में अगर मुझे नया कॉलम ऐड करना है, यानी टेबल में अगर मुझे नया कॉलम ऐड करना है, ये कीवर्ड ध्यान रखिएगा, इसी टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। ऑल्टर के साथ ऐड का यूज करेंगे तो नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। नाउ अगेन मॉडिफाई कीवर्ड, ऑल्टर के साथ अगर मैं मॉडिफाई कीवर्ड का यूज करूंगा तब मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों? मैं डेटा टाइप चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। आई कैन चेंज द डेटा टाइप, आई कैन चेंज द साइज ऑफ द कॉलम ऑल्सो। और साइज ऑफ द कॉलम में हम क्या क्या कर सकते हैं? इंक्रीज द साइज ऑफ द कॉलम एंड डिक्रीज द साइज ऑफ द कॉलम। तो अब मुझे ये बताइए, इंक्रीज तो हम हमेशा कर सकते हैं, ठीक है, क्या डिक्रीज भी हम हमेशा कर सकते हैं? मॉडिफाई में हम अगर किसी कॉलम का साइज डिक्रीज करना चाहते हैं, देन डिक्रीज विल ऑलवेज वर्क और विल गिव एरर इन सम केसेस। जस्ट टाइप कर दीजिए जल्दी से, क्या हम डिक्रीज हमेशा कर सकते हैं, यस और नो? सर एक दो बच्चों ने कहा है एरर इन सम केस, एरर इन सम केस, यस। अगर टेबल में ऑलरेडी डेटा है, ध्यान से सुनेगा, टेबल में ऑलरेडी डेटा है, इन दैट केस हम कॉलम का साइज डिक्रीज नहीं कर सकते। तो ये जरूरी नहीं है हर बात चले, लेकिन हम कॉलम का साइज इंक्रीज हमेशा कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मॉडिफाई के बाद आता है आपका ड्रॉप कॉलम। ड्रॉप कॉलम क्या करेगा? एग्जिस्टिंग कॉलम को ड्रॉप कर देगा, क्लियर है। इसके बाद आता है रीनेम। हम ऑल्टर के साथ अगर रीनेम कॉलम का यूज करते हैं, ऑल्टर के साथ अगर हम रीनेम कॉलम का यूज करते हैं तो हम कॉलम को रीनेम कर सकते हैं, क्लियर है। ऑल्टर के साथ अगर हम रीनेम कॉलम का यूज करते हैं तो हम कॉलम को रीनेम कर सकते हैं। नाउ सर साउंड आ रहा है? यस सर, यस सर। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम क्या कर सकते हैं ऑल्टर के साथ? रीनेम टेबल। अगर मेरी टेबल का नाम है ईएमपी और मैं उसको नाम देना चाहता हूं एम्प्लॉय, तो मैं रीनेम भी कर सकता हूं। तो ऑल्टर के साथ हम ऐड कर सकते हैं ना कॉलम, मॉडिफाई कर सकते हैं कॉलम को, एग्जिस्टिंग कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं, कॉलम को रीनेम कर सकते हैं, टेबल को रीनेम कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका तीसरा डीडीएल कमांड, ड्रॉप। ड्रॉप कमांड से हम क्या ड्रॉप करते हैं? टेबल को, टेबल को डेटा के साथ। तो टेबल कंप्लीटली रिमूव हो जाती है डेटाबेस से, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेक्स्ट कमांड आता है आपका ट्रंकेट कमांड। ट्रंकेट कमांड क्या करता है? ट्रंकेट कमांड मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, ध्यान से सुनेगा। ट्रंकेट कमांड मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, बट उसमें जो डेटा होता है वो आपका रिमूव हो जाता है, क्लियर है। ड्रॉप में क्या होगा? ड्रॉप में पूरी टेबल डेटा के साथ रिमूव होती है। ट्रंकेट में क्या होगा? टेबल का स्ट्रक्चर रहता है, बस टेबल का डेटा रिमूव हो जाता है। तो ये थे आपके डीडीएल कमांड्स। नाउ अब हम मूव करते हैं डीएमएल कमांड्स पर। डीएमएल कमांड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी ये डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। डीडीएल डेटा के स्ट्रक्चर पर वर्क करता है, डीएमएल डेटा पर वर्क करता है। तो डीएमएल को समझ लेते हैं। नाउ दूसरा है हमारा डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो इसमें सबसे पहला कमांड आता है बच्चों इंसर्ट। इंसर्ट किस लिए यूज होगा? एक रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए। दूसरा डेट, अब डेट किस लिए यूज होगा?
एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए। सपोज आपका एड्रेस चेंज हो गया, तो आप अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हो, किस कमांड के थ्रू होगा वो? अपडेट कमांड के थ्रू। लास्ट, डिलीट। डिलीट कमांड किस लिए यूज किया जाता है? डिलीट कमांड एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए। क्लियर है? तो ये होते हैं हमारे डीएमएल कमांड। थर्ड, डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप। इसको हम अचीव करते हैं सेलेक्ट कमांड के थ्रू। भाई हमने टेबल बना दी, टेबल में डेटा डाल दिया, अब डीक्यूएल का क्या यूज है? अब अगर मुझे रिपोर्ट देखनी है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, तो मुझे काउंट करना है और उसे डिस्प्ले कराना है रिपोर्ट की फॉर्म में, तो वो होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, यानी डेटा को रिट्रीव करना डेटाबेस से। इसको हम अचीव करते हैं सेलेक्ट कमांड के थ्रू। ओके, इसके बाद आता है आपका डीसीएल कमांड, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, which basically deal with the control access to the database। ध्यान से सुनिएगा, it provides control access to the database। मतलब अगर आप एक सिंपल यूजर हो तो आप उस डेटा को केवल व्यू कर सकते हो। अगर आप अकाउंटेंट हो किसी कंपनी में, आप उसमें डेटा को इंसर्ट भी कर सकते हो, डेटा को अपडेट भी कर सकते हो, यानी अकॉर्डिंग टू यूजर आपका रोल चेंज हो रहा है। तो चेंज करने के लिए, परमिशन असाइन करने के लिए हम यूज करते हैं ग्रांट कमांड। अगर मैं आपको परमिशन देना चाहता हूं कि आप केवल व्यू करोगे, अपडेट नहीं करोगे, तो मैं ग्रांट कमांड के थ्रू करूंगा। इसके बाद आता है रिवोक। अगर मैंने आपको कोई कमांड दिया, परमिशन दी, अब मैं उसको वापस लेना चाहता हूं, तो वो मैं रिवोक कमांड के थ्रू अचीव कर सकता हूं। लास्ट, टीसीएल कमांड, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज क्या करता है बच्चों? These commands deal with the operations caused by the DML। यानी DML क्या करेगा? डेटा को इंसर्ट करेगा, डेटा को अपडेट करेगा, डेटा को डिलीट करेगा। अब जैसे आप अपने अकाउंट से मनी ट्रांसफर करते हैं, तो वो अमाउंट आपकी अकाउंट की मनी से डिडक्ट होगा। अब वो जो अमाउंट डिडक्ट हुआ, उसके बाद जो अमाउंट बचा, वो परमानेंटली रिफ्लेक्ट हो, यानी सेव हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे? ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें आता है कमिट कमांड, जो भी आपने चेंज किया उसको परमानेंटली रिफ्लेक्ट करने के लिए कमिट। अब गलती से अगर आप कोई चेंज कर गए हैं, उसको अनडू करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं रोल बैक। तो स्टूडेंट्स, ये हैं हमारे टाइप्स ऑफ कमांड इन एसक्यूएल। तो आई थिंक सबको समझ आ गए होंगे, डीडीएल, डीएमएल, डीक्यूएल, डीसीएल एंड टीसीएल। सर क्लियर है सबको? अगर आपको बेटा कोई डाउट है तो प्लीज आप, हाँ सर बच्चों का भी क्लियर है। यस यस क्लियर। ओके ओके, कैन वी मूव फॉरवर्ड? यस सर, वी कैन मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, स्टार्ट। सर एक बच्चे का, ऋतिक का आया है डी। Tanvi has also replied D. Okay. Surinda trying. Anmol has D, answered D. Diksha has answered D. Okay. Rachit ne D. Piyush D. Sudhanshu E. Kishan D. Meanwhile Anjali ne C बोला है. Dhananjay ने D. Rakhi has chosen D as an option. Rupam has chosen D. Shubham Rai ने E. Akram ने D. Nitin, Ayush, Prashant ने C बोला है. Otherwise बाकी सबने D बोला है. दिव्या ने D बोला. अर्चित ने C बोला. Okay, okay. So now answer is coming. So answer is C. जो बहुत कम बच्चों ने दिया था। Okay, okay, okay. तो पहले इसको क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा डाउट। बच्चे एक चीज ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए, जिन्होंने ऑप्शन डी को क्लिक किया है बोथ ए एंड सी, वो गलत क्यों है? देखिए ऑप्शन ए में ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉलम नेम, एम्प्लॉय और नेम, इसके बीच में स्पेस है। तो हमेशा ध्यान रखिए, कॉलम नेम में कभी स्पेस नहीं आता। अंडरस्कोर करके आप अंडरस्कोर करके आप उसको लिख सकते हो, लेकिन स्पेस नहीं आएगा, तो ये कमांड एरर देगा। तो इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा? बिकॉज आपने साइज कितना लिया है, ठीक है 14, और आपने यहाँ लिखा है 13। यहाँ साइज आपने 14 लिया और यहाँ लिखा है 13, इसलिए नहीं होगा।
इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसको आप समझ लेते हैं आगे। देखिए बेसिकली सबसे पहले इसमें क्रिएट कमांड का यूज किया गया बच्चों। तो क्रिएट कमांड का सिंटैक्स क्या होता है, क्रिएट टेबल। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जितने भी डीडीएल कमांड्स हैं उसमें टेबल कीवर्ड जरूर आएगा। ये जो मैंने टेबल लिखा है क्रिएट टेबल, टेबल नेम, इसको एम्प्लॉय नेम दे दिया हमने, तो इन्होंने कहा है नाउ। अब राउंड ब्रैकेट, अब कॉलम का नेम, तो सबसे पहला कॉलम कौन सा कह रहा है वो, एम्प्लॉय आईडी, तो मैं लिखूंगा एम्प्लॉय आईडी। ठीक है। अब इसका डेटा टाइप क्या होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कह रहा है आप मैक्सिमम 999 वैल्यू स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ से मुझे ये तो क्लियर हो रहा है कि जो भी वैल्यू स्टोर करूंगा उसमें मैक्सिमम 3 डिजिट हो सकती है। तो बच्चों इसके लिए हम यूज करते हैं डेटा टाइप होता है नंबर डेटा टाइप। ठीक है, नंबर डेटा टाइप। नंबर डेटा टाइप का सिंटैक्स होता है P, S। बेसिकली ये इंटीजर वैल्यू और फ्लोट वैल्यू दोनों को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है। तो नंबर P, S, यहाँ P को बोलते हैं बच्चों प्रिसीजन, यानी टोटल नंबर ऑफ डिजिट बिफोर एंड आफ्टर डेसिमल, टोटल नंबर ऑफ डिजिट बिफोर एंड आफ्टर डेसिमल। नाउ S इज कॉल्ड द स्केल, नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल। तो जल्दी से बता दीजिए कि बिफोर द डेसिमल कितने डिजिट होंगे। P इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट बिफोर एंड आफ्टर डेसिमल, S इज द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल। तो नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल कितने होंगे बच्चों। सर 2 रिप्लाई आए हैं, 3 नहीं, P और S के फॉर्म में बताइए। P टोटल नंबर ऑफ डिजिट है, S स्केल है। पलक ने तो करा है P-S। वेरी गुड। तो नंबर ऑफ डिजिट बिफोर द डेसिमल P - S। तो यहाँ पे हम डेसिमल के बाद कितने डिजिट ले रहे हैं बता सकते हैं, एक भी नहीं। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, नंबर टोटल डिजिट कितने ले रहा हूं मैं 3, और डेसिमल के बाद कितने ले रहा हूं, एक भी नहीं। तो मैं S को स्पेसिफाई करूंगा ही नहीं। ठीक है, मैंने केवल P को स्पेसिफाई किया, S को स्पेसिफाई नहीं किया, क्योंकि S लेना ही नहीं है मुझे। नाउ क्लियर है सबको। नाउ नेक्स्ट कॉलम सैलरी। अब देखिए, अब यहाँ पे फिर से आपका नंबर डेटा टाइप आएगा। अब वो क्या कह रहा है, सैलरी फ्लोटिंग टाइप का होगा, बिल्कुल सही है, और डेसिमल के 2 प्लेस तक लेना है मुझे। तो यहाँ हमने फिर से नंबर डेटा टाइप को यूज किया, पहले केस में इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए, फ्लोटिंग को। तो सपोज अगर मैंने 8 लिया टोटल डिजिट, तो डेसिमल के बाद कितनी लूंगा बच्चों, तो क्लियर है। यहाँ पे डेसिमल के बाद एक भी डिजिट नहीं थी तो हमने उसको मेंशन नहीं किया। यहाँ पे टोटल डिजिट हमने 8 लिए हैं और डेसिमल के बाद 2। क्लियर है। तीसरा कॉलम क्या है बच्चों, डेट ऑफ बर्थ, इसको मैंने नाम दिया है DOB। इसका हाँ तीसरा डेटा टाइप डेट। डेटा टाइप का डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या होता है, डेट डेटा टाइप का डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है DD MON YYYY। ठीक है, और ये डेट वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, सिंगल कोट्स में देते हैं हम हमेशा डेट वैल्यू। चौथा कॉलम क्या कह रहा है, चौथा कॉलम है नेम, और नेम में हमने डेटा टाइप क्या लिया, varchar 2 और साइज कितना लिया 14। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कौन सा कॉलम है, सिटी में अगेन हमने डेटा टाइप लिया varchar 2। क्लियर है। तो ये मेरी टेबल क्रिएट। अब यहाँ पे बच्चों को डाउट आ रहा होगा कि मैंने कैरेक्टर डेटा टाइप क्यों नहीं लिया भाई, varchar ही क्यों लिया, कैरेक्टर भी तो ले सकते थे, कोई एरर नहीं आएगा। बिल्कुल करेक्ट बात है कि भाई मैं कैरेक्टर डेटा टाइप लूंगा तो कोई एरर नहीं आएगा, बट स्पेस यूटिलाइजेशन नहीं होगा बच्चों। ध्यान से देखिए varchar 2 और char में क्या डिफरेंस होता है। varchar 2 में सपोज मैंने 14 साइज दिया और char में भी मैंने 14 साइज दिया। अब देखिए डिफरेंस क्या होगा, कैरेक्टर के केस में क्या होगा, 14 बाइट्स एलोकेट हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, 14 बाइट्स एलोकेट हो जाएंगे। अगर मेरे नेम की लेंथ है 4 तो बाकी 10 बाइट्स एलोकेट रहेंगे, हम उनको रीयूज नहीं कर सकते। बट varchar 2 के केस में क्या है, इसको बोलते हैं वेरिएबल कैरेक्टर। अगर मेरे नेम की लेंथ है 4 तो कितने कैरेक्टर बचे 10, उन 10 कैरेक्टर को मैं रीयूज, उन 10 बाइट्स को मैं रीयूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्पेस को यूटिलाइज कर पा रहा हूँ। इसलिए हमेशा याद रखिए जब वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर आता है, जैसे इन्होंने यहाँ कहा कि मैक्सिमम 14 कैरेक्टर हो सकता है 4 हो 5 हो, तो उस केस में आप हमेशा varchar 2 यूज कीजिए। और अगर उसने कहा कि फिक्स लेंथ है, यानी जैसे अगर मैं आपसे बोलूं जेंडर के लिए क्या डेटा टाइप लोगे आप, कैरेक्टर। क्यों, क्योंकि कैरेक्टर जेंडर या तो F या M, तो कैरेक्टर की लेंथ होगी 1, उस केस में आप कैरेक्टर लेंगे। क्लियर है। हाँ एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है,
एक्सेस करना किसको फास्टर है? फास्टर कौन सा होता है, कैरेक्टर या वर्कर? जल्दी बताइए, कैरेक्टर फास्ट होगा या वर्कर फास्ट होगा प्रोसेसिंग में? स्पेस यूटिलाइजेशन वर्कर देगा, प्रोसेसिंग में फास्ट कौन सा डेटा टाइप होगा? जल्दी से टाइप कर दीजिए, कैरेक्टर फास्ट होगा या वर्कर 2? बच्चे कैर कर रहे हैं सर, एक बच्चे ने कैर वेरी किया, दो बच्चों ने वेर कैर किया। बेटा कैरेक्टर फास्ट होगा, क्यों? प्रोसेसिंग में स्पेस यूटिलाइजेशन वर्कर देगा, क्यों फास्ट होगा? क्योंकि वर्कर के केस में मुझे कैरेक्टर तो स्टोर करने ही करने हैं, और कितने कैरेक्टर स्टोर हुए वो भी स्टोर करना है, क्योंकि यहाँ लेंथ फिक्स नहीं होती, कोई 4 का है, कोई 5 का है। लेकिन कैर के केस में 14 है तो 14 लेंथ फिक्स है, तो कैर फास्टर होता है देन वर्कर। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फ्लोट हो रहा है, ध्यान से देखिए, स्टार्ट हो चुका है। बच्चे आने लगे, बच्चों ने ए करा, कुछ ने सी करा, शुभम मीनवाइल डी कर रहा है, निशांत रिप्लाइड सी, शुभम ए, श्रेयांश सी, आशीन ए, भावना ए, जितेंद्र ए, अनमोल हैज रिप्लाइड ए, अभिषेक ए, देव हैज रिप्लाइड ए, पल्लवी का ए, अभिषेक का ए, ईशा का ए, विनय ने सी करा है, ओके ओके सर। सुरेश ने बी करा है, आशीष ने ए। आंसर है आपका ए, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं ए क्यों है। देखिए ध्यान से देखिए, ये कह रहे DDL commands, how many DDL commands will be used in order to convert schema A to schema B? ओके, तो सबसे पहले पहला कॉलम मैच कीजिए, यहाँ साइज चेंज हुआ है, तो कौन सा कमांड यूज कर रहा हूँ बच्चों में? ऑल्टर के साथ मॉडिफाई, ऑल्टर के साथ मॉडिफाई एक बार, ठीक है। अब क्योंकि साइज मैंने इंक्रीज किया, क्लियर है। नाउ दूसरे पे आइए, देखिए यहाँ नेम है डेटा कॉलम का नेम, यहाँ हमने ई नेम कर दिया, यानी दूसरा कमांड ऑल्टर के साथ मैंने यूज किया रीनेम कॉलम। ओके, नाउ डेटा टाइप में कोई चेंज नहीं है। नाउ कम टू सैलरी, इसमें देखिए साइज मॉडिफाई हुआ है, तो अगेन साइज चेंज करना है कॉलम का, तो मैं क्या यूज करूंगा? ऑल्टर के साथ मॉडिफाई। तो कितनी बार मॉडिफाई यूज हुआ ऑल्टर के साथ? 2 बार। आगे बढ़िए, एड्रेस वेरकैट 2, एड्रेस वेरकैट 2 कोई चेंज नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्कीमा बी में एक नया कॉलम और है, डेट ऑफ बर्थ, तो मैं तीसरा कमांड कौन सा यूज करूंगा ऑल्टर के साथ? ऐड। कितनी बार यूज हुआ? 1, तो टोटल क्या हुआ मेरा? 2 बार ऑल्टर विद मॉडिफाई, 1 बार रीनेम कॉलम, 1 बार ऐड कॉलम। तो क्लियर है स्टूडेंट्स आपको? यस। बेटा कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स, अदरवाइज वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़े सर? क्या क्लियर है? यस सर, बच्चों ओके क्लियर आ ओके गया। ओके। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आता है इस टाइप का, न्यूमेरिकल। स्टार्ट। आपको अब इसके ऑप्शंस आंसर टाइप करने हैं, क्या क्या वैल्यू स्टोर होगी अगर इनपुट में ये वैल्यूज हैं तो। सॉरी, तो बच्चों का आ रहा है, सृष्टि रिप्लाइड 1211, दीक्षा का 1211, जितेंद्र 1211। You need to type the answer over check box only because they filled in the blanks of type का क्वेश्चन है। सर जितने बच्चों ने आंसर किया अराउंड 25, 30, 40 स्टूडेंट का आंसर आ गया 1211, दे आर रिप्लाइंग 1211। ओके, नेक्स्ट वाले का फॉर नंबर 4 सेकंड के लिए 2211 आ रहा है बच्चों का आंसर। 2211, सॉरी, एक बच्चे का आया था 201.4, शायद वो थर्ड के लिए होगा। वी आर लुकिंग फॉर सेकंड का 201.59।
ये अक्षत ने किया है 1211 2211 201.59। ओके ओके, चलिए बच्चों आगे समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये इसके आंसर्स हैं, ठीक है। अब आंसर ये कैसे आए हैं इसको समझ लेते हैं। बेटा नंबर डेटा टाइप एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है एसक्यूएल में, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया था, इसका फॉर्मेट होता है P, S, where P is the precision, total number of digit, S is the scale, number of digit after decimal। तो इसका सबसे पहला वेरिएंट, अगर मैं कुछ भी नहीं देता हूं, ठीक है, तो हमेशा याद रखिए नंबर के केस में 38 डिजिट प्रिसीजन होता है। टोटल 38 डिजिट होते हैं, प्रिसीजन मतलब P, टोटल 38 डिजिट होते हैं। क्लियर है। अगर पहला वेरिएंट, अगर मैं केवल नंबर डेटा टाइप लिखता हूं, उस केस में कोई भी वैल्यू आप देंगे, दैट वैल्यू विल बी स्टोर। क्लियर है। डेसिमल के पहले भी कितने डिजिट ले सकते हैं, डेसिमल के बाद भी कितने डिजिट ले सकते हैं, बट टोटल डिजिट शुड बी 38। तो इस केस में क्या होगा, जो आपने इनपुट दिया है वो ऐसे का ऐसा ही स्टोर हो जाएगा। क्लियर है। तो पहला वेरिएंट समझ आ गया, नंबर में ना तो P देने की जरूरत है ना S। उस केस में टोटल डिजिट ऑफ प्रिसीजन 38 होंगे। डेसिमल से पहले कितने, डेसिमल के बाद कितने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टोटल 38 डिजिट। ठीक है। नाउ क्लियर है आपको पहला पॉइंट, ये आपको याद रखने बच्चों पॉइंट, क्योंकि इसी में क्वेश्चंस बनते हैं। आगे बढ़े नेक्स्ट वाले पे। यस सर, कोई नाउ डाउट नहीं बच्चों को। नाउ नंबर 4, अगर मैंने नंबर 4 लिखा बच्चों, इस केस में क्या है, डेसिमल के बाद एक भी डिजिट नहीं आएगी, जैसा कि हमने पहले समझा था। लेकिन अगर आप इनपुट में दे दिया कि डेसिमल के बाद ये 2 डिजिट हैं, तो यहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे राउंड फंक्शन। राउंड क्या करेगा बता सकते हैं, राउंड क्या करेगा, डेसिमल के बाद मुझे एक भी डिजिट नहीं लेना बच्चों। राउंड क्या करेगा, डेसिमल के 0 प्लेस तक राउंड कर देगा। तो हमेशा याद रखिए, देखिए ये क्या है 7, 7 5 जो उससे ज्यादा है तो इससे पहले वाला डिजिट एक बढ़ जाएगा, तो 2212। क्लियर है। अगर वो कह रहा है डेसिमल के बाद 0 डिजिट है, लेकिन आपने 2 दिए तो वो राउंड कर देगा और डेसिमल के 0 प्लेस तक राउंड करेगा, तो आंसर आएगा 2212। ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी होती है नंबर डेटा टाइप, याद रखना है आपको। नाउ थर्ड नंबर 5,2, इसमें क्या दिया है मैंने 201.59। 5,2 का मतलब क्या हुआ बता सकते हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, टोटल डिजिट कितनी है 5, तो डेसिमल से पहले कितने डिजिट हुए 3। नाउ दिस फॉर्मेट, दिस नंबर फॉलोज द फॉर्मेट, तो ये जैसा है वैसा ही स्टोर हो जाएगा। नाउ कम टू द फोर्थ 201.46। अब आप इसमें बता सकते हैं 201.5 क्यों आया, टाइप कर दीजिए जल्दी से। इसमें वैल्यू है 6,1, डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल से पहले 5, तो 201.46 का 201.5 क्यों आया। Sir, two students have replied because of round off function. वेरी गुड वेरी गुड, नाउ क्लियर टू यू। ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे डेसिमल के एक प्लेस तक राउंड करना था, डेसिमल के सेकंड प्लेस पे 6 है जो 5 से ज्यादा है, तो ये 5 हो जाएगा 201.5। क्लियर है। नाउ ये अगेन एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है 5,-2। अभी तक हमने पढ़ा था कि डेसिमल के राइट तक हम राउंड करते हैं, लेकिन अगर डेसिमल अगर नेगेटिव दिया है तो इसका मतलब क्या है, डेसिमल के लेफ्ट में राउंड करना है। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ 152.65, अब इसको जरा ध्यान से समझिए, डेसिमल के लेफ्ट में मुझे राउंड करना है, तो डेसिमल के राइट के डिजिट तो बिल्कुल क्रॉस हो जाएंगे, उन्हें तो हमें रखना ही नहीं है। ठीक है, डेसिमल के राइट के डिजिट तो बिल्कुल क्रॉस हो जाएंगे, उन्हें तो रखना ही नहीं है, क्योंकि डेसिमल के लेफ्ट में जाना है। अब डेसिमल के लेफ्ट में कितने प्लेस तक राउंड करना है बच्चों, 2 तक। तो स्टार्ट करते हैं, डेसिमल के लेफ्ट में कैसे राउंड होता है वो समझ लीजिए। यहाँ पे 2 है, ये 0 तो होना ही होना है, ये तो हमेशा ध्यान रखिए। अगर डेसिमल के 1 प्लेस 2 प्लेस तक कह रहा है तो 2 प्लेस तक कह रहा है तो दोनों डिजिट 0 होने हैं, लेकिन आगे वाला डिजिट बढ़ना है या नहीं बढ़ना वो किस पे डिपेंड करेगा, करेंट डिजिट 5 या उससे ज्यादा है तो। ध्यान से समझ आया। देखिए डेसिमल के लेफ्ट में जब मुझे राउंड करना है तो जितने प्लेस तक वो बोल रहा है उतने प्लेस तक तो 0 आएंगे ही आएंगे। क्लियर है। अब आगे वाला डिजिट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इससे पहले वाला डिजिट 5 या उससे ज्यादा है तब। अब देखिए यहाँ 2 है तो 5 से कम है, सिंपल 0। दूसरे प्लेस तक राउंड करना है तो यहाँ भी 0 आएगा, लेकिन ये 5 या उससे ज्यादा है तो आगे वाला डिजिट क्या हो जाएगा 1, एक बढ़ जाएगा।
ये क्लियर हुआ या नहीं सबको, बताइए। डेसिमल के लेफ्ट में हम राउंड कर रहे हैं, क्लियर है बच्चों? हाँ सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके 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 ओके, अभी करते हैं। देखो बच्चों, ये क्या कह रहे हैं, 152.65 यानी -2, यानी मुझे डेसिमल के लेफ्ट में राउंड करना है कितने प्लेस बच्चों, 2 प्लेस तक। तो डेसिमल के लेफ्ट में जब राउंड करना है तो आप राइट वाले डिजिट्स को तो हटा ही दीजिए, उसमें तो सोचना ही नहीं है आपको कुछ, क्लियर है। अब लेफ्ट में कैसे चेंज होगा, वो कितने प्लेस तक कह रहा है आपको राउंड करने के लिए, 2 प्लेस तक। तो दोनों जगह 0 आएगा, लेकिन उससे आगे वाला डिजिट 1 की जगह 2 होगा या 1 की जगह 1 ही रहेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, उससे पहले वाला डिजिट क्या है, 5 या उससे ज्यादा है तो उससे आगे वाला डिजिट बढ़ जाएगा। तो देखिए 2 प्लेस तक है तो ये तो 2 है, तो 2 तो 5 से कम है, तो आगे वाला डिजिट कुछ नहीं होगा, 0 आ जाएगा। अब ये 5 है, 5 या उससे ज्यादा होता है तो क्या होता है, ये तो 0 होगा ही होगा, आगे वाला डिजिट 1 बढ़ जाएगा। ये होता है डेसिमल के लेफ्ट में राउंड करने का कंसेप्ट। डेसिमल के राइट का कंसेप्ट तो सब जानते हैं, डेसिमल के लेफ्ट में राउंड करने का कंसेप्ट ये होता है। आप सबको क्लियर है? आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। यस सर, यस सर, स्टूडेंट आर सेइंग यहाँ क्लियर हो गया, तो वी कैन मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके, ये लास्ट वाला और देख लेते हैं। अब देखिए नंबर *2, *2 का मतलब होता है डेसिमल से पहले आप कितने भी डिजिट रख सकते हैं, लेकिन डेसिमल के बाद मैंने 2 डिजिट बोले हैं। स्टार का मतलब होता है टोटल डिजिट कितनी भी हो सकते हैं, लेकिन डेसिमल के बाद 2 डिजिट होंगे, तो डेसिमल से पहले कितने भी डिजिट आ सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 4 6, क्योंकि ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही रहेगा। क्लियर है सबको? अब आगे बढ़ते हैं। 8 Student, keep try the solution of this question. तो 3 बच्चों के आंसर आ गए बी। ओके, गुड। वंदिता has also replied B. प्रियम, अभय, मानवी, मीनवाइल ऋतिक ने सी बोला है, एक स्टूडेंट ऋतिक ने सी बोला, अदरवाइज मोस्ट ऑफ देम हैव आंसर्ड बी। वंदिता हैज ओके ओके, आंसर्ड सी, श्रेयांशी ने सी बोला है, पालक ने बोला है सी, अक्षत ने सी, एंड दीक्षा बी, विपुल बी, एक स्टूडेंट ने ए बोला है, अकरम ने ए बोला है, मुस्कान ने सी, साक्षी ने सी, जया ने बी, आंसर चेक कर लेते हैं। ओके यस सर, सर, आई थिंक वी शुड मूव टुवर्ड द आंसर साइड। तो आंसर इज सी स्टूडेंट्स, आंसर इज सी। अब सी कैसे वो समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराने के बाद टेबल ए और टेबल बी में कितने कितने रिकॉर्ड्स होंगे। तो सबसे पहले हम इंसर्ट का कमांड समझ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, ठीक है, यानी एम में डालना है मुझे, ये रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। तो पहला वैल्यू क्या है, 99, आईडी करेक्ट है, क्लियर है। दूसरा क्या है, नेम, ओके वो भी करेक्ट है। और तीसरा क्या है, एज। तो ये पहला रिकॉर्ड तो इंसर्ट हो जाएगा। तो अब ए में कितने रिकॉर्ड हो गए बच्चों, पहले 3 थे अब 4। नाउ सेकंड कमांड पे आइए। सेकंड कमांड क्या कह रहा है, 99 रवि 12, मतलब जिस सीक्वेंस में आपने कॉलम स्पेसिफाई किए हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिस सीक्वेंस में कॉलम स्पेसिफाई किए हैं उसी सीक्वेंस में आपने वैल्यूज इंसर्ट किए हैं, तो ये वाला कमांड भी रन हो जाएगा, करेक्ट। तो अब यहाँ टोटल वैल्यूज कितनी हो गए, टोटल रिकॉर्ड 5 ए में। अब आइए तीसरे ए के कमांड पर। पहले आपने क्या स्पेसिफाई किया था, आईडी, आपने क्या दे दिया, रवि, यानी सीक्वेंस फॉलो नहीं किया। हमेशा याद रखिए, जब भी आप इंसर्ट कमांड रन कराते हैं और आप सीक्वेंस प्रोवाइड नहीं करते अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, तो उस केस में आपको टेबल की अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। मतलब टेबल में जिस सीक्वेंस में आपने कॉलम स्पेसिफाई किए हैं, आपको उसी सीक्वेंस में रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो यहाँ पे पहला आईडी था, आपने नेम डाल दिया, तो ये
एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। क्लियर है? इसको समझ लेते हैं। देखिए इस तरीके से अगर मैं सिंटैक्स बोलता हूँ तो सिंटैक्स क्या कहता है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ओके, वैल्यूज। अब मैंने यहाँ पे सीक्वेंस नहीं दिया अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, तो मुझे एक टेबल का सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। पहले आईडी वाला आएगा वैल्यू, ठीक है, फिर नेम वाली आएगी, फिर एज वाली। लेकिन अगर मैं अपना सीक्वेंस देना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इंसर्ट इनटू टेबल नेम ए। अब इसमें सीक्वेंस बना दीजिए, यानी पहले मैं नेम देना चाहता हूँ, फिर मैं आईडी देना चाहता हूँ, फिर मैं एज वैल्यू देना चाहता हूँ। अब आप वैल्यूज लिख दीजिए। तो अब आपने जो सीक्वेंस दिया वो आपको फॉलो करना है, यानी यहाँ पे रवि, क्लियर है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 19, क्लियर है सबको। लेकिन यहाँ ऐसा इन्होंने सीक्वेंस नहीं दिया एक के बाद, तो ये कमांड रन नहीं होगा। अब चौथे कमांड पर आ जाइए। चौथा कमांड किस टेबल पर चल रहा है, बी पर। बी का भी सिंटैक्स आईडी नेम एज है, तो पहले आईडी जाएगी, फिर नेम जाएगा, फिर एज जाएगा, यानी ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। तो बी में पहले कितने रिकॉर्ड थे, 4, अब कितने हो गए, 5। अब दोबारा लास्ट कमांड पर आ जाइए। अगेन आपने सीक्वेंस चेंज कर दिया, लेकिन सीक्वेंस बताया नहीं यहाँ पर, तो क्या ये रिकॉर्ड इंसर्ट होगा बच्चों, नहीं। तो अब बताइए कितने रिकॉर्ड हुए, ए में 5, बी में 5। नाउ क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल। अगर क्लियर हो गया क्वेश्चन तो यू जस्ट टाइप क्लियर, अदरवाइज वी विल टेक योर डाउट। क्लियर हो गया सर, मैक्सिमम रिप्लाइड क्लियर। ओके बच्चों, ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लैश हो चुका है। शिवम पाठक has replied first statement. एक स्टूडेंट ने करा है डी, ओके, एक दो ने करा है सी, डी सी डी सी। So students are answering, they are answering in a good number, and they are replying as a C or D as an option to this question. ओके 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 ओके, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं अभी। C या D. So I think we should wait. Timer भी है सर अभी। ओके सर। अमन सी, एक बच्चे दिव्यांशु ने ए बोला है, अक्षत ने ए बोला है, अंजलि ने ए बोला है, अक्रम ने ए बोला है, अभिषेक ने सी, शिवांगी ने डी, पलक ने ए, अंजलि ने ए, प्रांजल मिश्रा ने ए, अभिषेक ने ए, प्रियम ए। तो आंसर आ रहे हैं सर, मतलब अब ए आ रहे हैं, अदरवाइज सी और डी है। ओके ओके, नाउ आंसर इज ए। अब समझ लेते हैं इसको, आंसर ए क्यों है भाई। स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है, टेबल ए को मुझे टेबल बी के अकॉर्डिंग स्कीमा में कन्वर्ट, मतलब टेबल ए को टेबल बी में कन्वर्ट करना है, मतलब जिस तरह टेबल बी है उतनी रिकॉर्ड टेबल ए में होना चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं हम, मिनिमम मूव्स में, ये और ध्यान रखना है आपको। तो देखिए सबसे पहले देखिए टेबल ए में कितने रिकॉर्ड हैं, 3, टेबल बी में 4। तो यानी मुझे ये तो समझ आ गया कि एक रिकॉर्ड इंसर्ट तो होना ही होना है, चाहे मैं कुछ भी कर लूं। क्लियर है? तो एक बार इंसर्ट तो चलेगा ही चलेगा। अब देख लेते हैं कौन से रिकॉर्ड सेम है। देखिए रोहित 9911, ये इसमें कुछ नहीं करना हमें। 15 श्रेया 24, ये भी एज इट है, ठीक है। 98 रोहित 20, ये कहीं नहीं है ए में, तो ये तो इंसर्ट हो ही चुका है, तो ये भी हो गया। अब हमारा लास्ट कौन सा बचा टेबल ए में, 12 अरुण 60, ये वाला रिकॉर्ड बचा बच्चों। और यहाँ पे कौन सा बचा, 25 हरीश 60। अब स्टूडेंट्स इसे करने के 2 तरीके हैं। क्या, या तो मैं इस रिकॉर्ड को डिलीट करूं पहले अरुण वाले को, और हरीश वाले रिकॉर्ड को इंसर्ट करूं। मतलब अरुण वाले रिकॉर्ड को डिलीट करें और हरीश वाले रिकॉर्ड को इंसर्ट करें। तो टोटल कितने ऑपरेशन हुए, पहले डिलीट करो फिर इंसर्ट करो। टोटल कितने मूव हुए, 2। लेकिन मैं इससे और भी कम कर सकता हूं। कैसे, अगर मैं इसको ना लूं, मैं क्या करूं, देखिए 25 हरीश 60, 12 अरुण 60। अगर मैं इस अरुण वाले रिकॉर्ड को अपडेट कर दूं, अरुण वाले रिकॉर्ड को अपडेट कर दूं, तो मुझे हरीश वाला रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पे केवल एक ही कमांड लगा, अपडेट। अगर मैं इंसर्ट करके डिलीट करता तो 2, डिलीट करके इंसर्ट करता तो 2 होते। तो मिनिमम मूव्स कौन सा हुआ बच्चों, इंसर्ट एंड अपडेट। क्लियर है?
अगर क्लियर है तो टाइप कर दो यस। हाँ सर, बच्चों का आगे क्लियर है। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन। डाउट है तो बता दीजिए, अदरवाइज वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। सर सी आंसर आ रहे हैं। मीनवाइल प्रांजल has आंसर बी। डी, डी फॉर दिल्ली। हाँ, बी फॉर बॉम्बे। एक अच्छा बच्चे अच्छा। ने डी बोला है, तुलिका ने डी बोला है, नंदिता ने डी बोला है, विशाल ने बी, राखी ने बी, आशीष ने डी, ईशांक डी, देव ने डी, मयंक सी, पलक ने डी। मतलब स्टूडेंट आर गिविंग आइदर बी और डी। सम ऑफ ओके देम आर गिविंग सी आल्सो। देव गुप्ता ने बी, अमूल्य ने बी, अनमोल बी, वरुण ने डी। नाउ हम आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर इज डी फॉर दिल्ली। बी और सी दोनों सिंटैक्स करेक्ट हैं। क्यों है अब वो समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए बच्चों आपको ग्रुप बाई समझना है बस। ठीक है। बेसिकली ग्रुप बाई क्या होता है? अगर मैं आपसे क्वेरी कहता हूँ इन योर क्लास हाउ मेनी गर्ल्स एंड हाउ मेनी बॉयज, तो क्या करेंगे आप लोग? पहले बॉयज का एक ग्रुप बनाएंगे और एक गर्ल्स का ग्रुप बनाएंगे, फिर उस पर काउंट फंक्शन लगाएंगे। क्लियर है? यानी पहले जेंडर के अकॉर्डिंग आप ग्रुप बनाएंगे, फिर उस पर काउंट फंक्शन बनाएंगे। तो ये होता है ग्रुप बाई क्लॉज। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है वो समझ लेते हैं, क्योंकि इसी से आंसर मिलेगा आपको। सेलेक्ट कॉलम वन कॉमा एग्रीगेट फंक्शन, सपोज मैंने सम ले लिया, कोई भी कॉलम ले लिया उसमें, फ्रॉम टेबल नेम सपोज ईएमपी। क्लियर है? ग्रुप बाई। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ग्रुप बाई। ग्रुप बाई के साथ आपको बताना पड़ेगा कि आप किस कॉलम के बेस पे ग्रुप बनाना चाहते हो। जैसा अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, उसमें किस कॉलम के बेस पे बन रहा था? जेंडर के बेस पे। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, यहाँ पे किसके बेस पे वो बनाएगा? ठीक है, तो कोई ना कोई एक कॉलम होना चाहिए हमारे पास। ग्रुप बाई डिपार्टमेंट। बच्चों एक चीज याद रखिए, यहाँ ग्रुप बाई डिपार्टमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ग्रुप बाई के साथ जो भी कॉलम है, सेलेक्ट में जो भी कॉलम है वो सेम होने चाहिए। मतलब सेलेक्ट कमांड के साथ, ध्यान से सुनिएगा, सेलेक्ट कमांड के साथ आपने जो भी कॉलम दिए हैं, दोस कॉलम्स शुड बी प्रेजेंट विद ग्रुप बाई। सेलेक्ट कमांड के साथ जितने भी कॉलम आपने दिए हैं, भले एक दिया हो, दो दिया हो, तीन दिया हो, उतने और सेम वही कॉलम ग्रुप बाई के साथ होने चाहिए। लेकिन इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। पहला वाला कंसेप्ट समझ आया कि सेलेक्ट के साथ आपने जितने कॉलम लिखे हैं उतने कॉलम आपके ग्रुप बाई में होने चाहिए। ये समझ आ गया सबको? यस और नो जल्दी से। यस और नो जल्दी से। सेलेक्ट के साथ जितने कॉलम है उतने ग्रुप बाई में आने चाहिए आपके। हाँ सर, बच्चों का आ गया, यस आ गया। लेकिन इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है बच्चों। मतलब ग्रुप बाई में जितने कॉलम दिए, ग्रुप बाई में जो कॉलम है वो यहाँ पे हो ऐसा जरूरी नहीं है। सेलेक्ट में जितने कॉलम है वो सारे कॉलम ग्रुप बाई में होने चाहिए, लेकिन इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। तो अब आपको आई थिंक आंसर क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन दोबारा से हम ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए पहला वाला ऑप्शन तो करेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि हैविंग तो बोला ही नहीं है। क्लियर है? नाउ दूसरा, दूसरा क्या कह रहा है? सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाई डिपार्टमेंट, यानी डिपार्टमेंट वाइज मुझे काउंट करके बताओ। तो मैंने क्या कहा, ग्रुप बाई में जितने कॉलम दिए हैं वो जरूरी नहीं है सेलेक्ट में लिखो आप, लेकिन सेलेक्ट में जितने लिखे हैं, जैसे सेलेक्ट में आपने डिपार्टमेंट लिखा है, वो ग्रुप बाई में होना जरूरी है। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए एक पॉइंट हमेशा याद रखिए, सेलेक्ट में जितने कॉलम दिए हैं तो कॉलम शुड बी प्रेजेंट विद ग्रुप बाई, लेकिन वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। तो आई थिंक सबको आंसर क्लियर हो गया होगा। जल्दी से यस कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फिर। पुनीत सर, हाँ, एक बच्चे का डाउट है कि इस क्वेश्चन में जो ना बस उसने आंसर पूछा है, तो हमने साथ में डिपार्टमेंट क्यों लिखा है? साथ में डिपार्टमेंट क्यों लिखा है यहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी।
ये बेटा ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपको समझाने के लिए कि इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जब भी हमेशा याद रखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं तो आप मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को लेते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है? डी, क्योंकि बी भी चलेगा और सी भी चलेगा। क्लियर है? Yes, sir. I think resolve हो गया होगा उसका doubt. We think I should move toward the next question. We should move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। सर एक बच्चे का सी आया, वंदिता का। ओके सर अभी सृष्टि ने सी दिया, जया ने सी दिया, मीनवाइल निखिल ने ए, अक्षत ने बी, भावना सी, आंचल बी, ईशा सी, दिव्या सी, देव का डी, पलक का सी, अक्षत का ए, अंजलि का बी, विनय का सी, शिवम का बी। तो मिक्स आंसर आ रहे हैं बेसिकली। ओके ओके बी और सी बहुत आ रहे हैं, एक कुछ ने किया है। राखी हैज चोजन बी एज एन ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। धनंजय ने सी, शिवांगी ए, वरुण का सी, आशीष का ए, रूपम का बी। आंसर इज ए। आंसर आपका ए है बच्चों। क्लियर है? अब आंसर ए क्यों है वो समझ लेते हैं। देखिए ऑर्डर बाई क्लॉज क्या करता है? एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करता है। ऑर्डर बाई क्लॉज, ऑर्डर बाई के बाद आप जो भी कॉलम लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग उस ऑर्डर में अरेंज करता है। अगर आप कोई भी सीक्वेंस नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट किस ऑर्डर में अरेंज करेगा? असेंडिंग। लेकिन अगर आप डिसेंडिंग में करना चाहते हैं तो कॉलम के बाद आप डिसेंडिंग कर सकते हैं। नाउ अब कम टू द क्वेश्चन। वो क्या कह रहे हैं? सेलेक्ट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाई डिपार्टमेंट। सबसे पहले डिपार्टमेंट के बेस पे ऑर्डर करो बच्चों, और डिपार्टमेंट के बाद डीईएससी नहीं लिखा है तो डिफॉल्ट सीक्वेंस क्या हुआ? असेंडिंग, है ना? तो असेंडिंग डिपार्टमेंट वाइज। तो सबसे पहले कौन सा आएगा रिकॉर्ड? अकाउंट। क्लियर है सबको? देन एचआर अल्फाबेटिकली सॉर्ट करेंगे। एचआर, नाउ आईटी। क्लियर है? अब देखिए, अब वो दूसरा कॉलम के बेस पे सॉर्ट कर रहा है, तो सेम डिपार्टमेंट में किसके बेस पे सॉर्ट करना है हमें? नेम के बेस पे और डिसेंडिंग ऑर्डर में। सेम डिपार्टमेंट में नेम के बेस पे और डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर है? तो अब देखिए अकाउंट में तो एक ही रिकॉर्ड है, तो सेम डिपार्टमेंट में नेम के बेस पे तो वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा रिकॉर्ड। क्लियर है? वो पहले का पहला रिकॉर्ड ही रहेगा। नाउ अब कम टू द एचआर। अब एचआर दो है, तो हमेशा याद रखिए जब ऑर्डर वाइज एक से ज्यादा कॉलम पर लगता है, ध्यान से सुनिएगा, तो पहले कॉलम की सेम वैल्यू के लिए, पहले कॉलम की सेम वैल्यूज के लिए हम दूसरे कॉलम के ऑर्डर को अप्लाई करते हैं। तो पहले कॉलम की सेम वैल्यू क्या है? एचआर एचआर। दूसरे कॉलम की वैल्यू क्या है? नेम। उसको किस सीक्वेंस में करना है? डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग में करना है तो पहले कौन सा आएगा? विनीत या अनुभव? बताओ बच्चों, विनीत आएगा या अनुभव आएगा? पहले आएगा विनीत। तो अब ये रिकॉर्ड नंबर 2 हुआ, और अनुभव इसके बाद आएगा तो ये रिकॉर्ड नंबर 3 हुआ, और इसकी आईडी क्या है? 1001। तो आंसर क्या हुआ आपका? 1001। क्लियर है सबको? पहले कॉलम की सेम वैल्यूज के लिए दूसरे कॉलम को सॉर्ट करते हैं। ओके, यस, क्लियर है सबको? जल्दी से टाइप यस कीजिए। सर, बच्चों ने टाइप कर दिया, क्लियर है। मोस्ट ऑफ देम टाइप क्लियर है। ओके ओके ओके, आगे बढ़े। एक ठीक है सर, आप आगे बढ़िए। क्या? अच्छा ठीक है सर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों के आंसर स्टार्ट होते हैं। निशांत ने रिप्लाई डी, राखी है ए, गौरव ने ए, अमूल्य ने बी, अक्रम ने डी, आकाश ने बी, रूपम ने ए। तो वी आर गेटिंग मिक्स्ड रिस्पॉन्स। ओके ओके मैक्सिमम आर ओके गिविंग बी एंड डी।
मीनवाइल एक बच्चे का ए आया है, तुलिका ने करा है, मीत ने भी बी बोला है, विमे ने बी, दीक्षा मतलब बी एंड डी majority 50% have replied B and around 42% ने D. Some of them have ओके, replied A. तो आंसर इज बी सर, आंसर Good. बी है। और इसको समझ लेते हैं, बाकी स्टूडेंट्स के लिए इनका ऑप्शन करेक्ट नहीं है। देखिए बच्चों, हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टाइम का कंस्ट्रेंट रहता है, तो हमें जल्दी से जल्दी सॉल्व करना होता है। तो देखिए सबसे पहले वो क्या कह रहा है, वेयर लोअर नेम, यानी इस नेम लोअर, इस नेम को मैंने लोअर फंक्शन के अंदर दे दिया, यानी जो भी वैल्यू मैं दूंगा वो पहले लोअर में कन्वर्ट होगी, लोअर अल्फाबेट में। क्लियर है सबको, जो भी वैल्यू दूंगा वो लोअर अल्फाबेट में कन्वर्ट होगी, तो नेम का जो भी वैल्यू आएगी वो लोअर में कन्वर्ट होगी। अब देखिए क्या नाम होना चाहिए, अनुभव। अगर नाम अनुभव है, ठीक है, और ध्यान से देखिएगा, नाम अनुभव है और सैलरी 6,250 से 14,000 के बीच में है। यहाँ पे हमने बिटवीन का यूज किया है। बिटवीन क्या कहता है, इंक्लूसिव रेंज, यानी 6,250 भी इंक्लूड होगा, 14,000 भी इंक्लूड होगा, और उनके बीच की वैल्यूज भी इंक्लूड होंगे। क्लियर है, बिटवीन इंक्लूसिव होता है, स्टार्ट और एंड। नाउ अब वो क्या कह रहा है, लोअर नेम अनुभव, यानी नाम अनुभव हो तो अनुभव वाले ढूंढ लो, क्योंकि बीच में और लगाए तो कोई भी एक कंडीशन ट्रू होने पे हम रिकॉर्ड को सेलेक्ट कर लेंगे। तो पहला रिकॉर्ड कौन सा सेलेक्ट होगा, अनुभव वाला, तो एक रिकॉर्ड हुआ। दूसरा रिकॉर्ड कौन सा सेलेक्ट होगा, फिर से ये अनुभव वाला। क्लियर है, तो दो रिकॉर्ड सेलेक्ट हो गए। अब और में क्या कह रहे हैं, सैलरी 6,250 से 14,000 के बीच में हो। अब वो वाले रिकॉर्ड ढूंढिए जहां नाम तो अनुभव नहीं है, लेकिन सैलरी 6,250 से 14,000 के बीच में है। तो 6,250 से 14,000 के बीच में ना तो ये है, ना ही ये है, ये है, लेकिन इसका नाम अनुभव नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने और कंडीशन लगा रखी है। और दूसरा रिकॉर्ड ये है, ये ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है, जिसकी सैलरी 6,250 है। तो टोटल कितने रिकॉर्ड सेलेक्ट हुए, 3। अनुभव वाला पहला कैपिटल में, दूसरा स्मॉल में जो अनुभव है वो, उसकी सैलरी ऑलरेडी 6,250 है। तो इस वाले अनुभव के लिए ध्यान दीजिएगा, इस वाले अनुभव के लिए पहली कंडीशन भी ट्रू है और दूसरी कंडीशन भी ट्रू है, लेकिन रिकॉर्ड तो एक ही आएगा ना। उसके बाद तो तीसरा विनीत वाला, जिसका नाम अनुभव नहीं है लेकिन सैलरी रेंज में है। तो क्लियर है सबको, क्लियर है तो यस कर दीजिए जल्दी से। एक डाउट आया है कि अनुभव जो है कैपिटल में है तो वो सेलेक्ट कैसे हो गया, मतलब आई थिंक स्टूडेंट का लोअर फंक्शन उसने ध्यान नहीं दिया है, तो एक बार सर लोअर फंक्शन बता दीजिए तो ओके क्लियर ओके होगा। ओके ओके बच्चों देखो, लोअर फंक्शन क्या कहता है, लोअर फंक्शन कहता है वाट एवर वी हैव प्रोवाइडेड। सपोज मैंने एबीसी प्रोवाइड किया, वाट एवर वी हैव प्रोवाइडेड एज इनपुट, उसको लोअर में कन्वर्ट कर दो। क्लियर है, अब यहाँ पे लोअर में मैंने क्या लिखा है, लोअर में मैंने कॉलम का नाम लिखा है, ठीक है। तो वेयर कंडीशन कैसे वर्क करता है, पहले रिकॉर्ड को रीड करेगा, पहले रिकॉर्ड का नाम क्या है, अनुभव, तो लोअर के अंदर क्या आया, उस पहले रिकॉर्ड के नेम की वैल्यू वो क्या है आपकी, अनुभव, अनुभव। क्लियर है, पहले ये क्या होगा, पहले ये स्मॉल में कन्वर्ट होगा, अनुभव, ठीक है। अब ये किससे कंपेयर हुआ, जो हमें कंडीशन में अनुभव दे रखा है, हमें कंडीशन में कौन सा अनुभव दे रखा है, जिसके सारे लेटर क्या हैं, स्मॉल। तो सेलेक्ट हो गया या नहीं बताओ, अब आपको डाउट है सेलेक्ट हो गया या नहीं, बताओ बच्चों। ये सर क्लियर हो गया सर, आई ओके थिंक ओके क्लियर हो गया, एड्रेस सॉल्व हो गया। ओके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट। So students are giving A and D as an option to this question. हाँ सर, आ रही है ना, हाँ yeah. ओके ओके। नाउ स्टूडेंट्स,
सर आंसर क्या क्या है ऑप्शंस? हेलो हाँ सर, मैक्सिमम लोगों ने डी रिप्लाई करा है, कुछ ने ओके ए ओके करा है और कुछ ने बी भी करा है। ओके ओके, आंसर इज डी। ठीक है, इसको जरा समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए हमें वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स का सिंटेक्स समझना पड़ेगा। बाकी सभी बच्चों के लिए जिनको ये कंसेप्ट नहीं पता है, एक बार समझ लीजिए, बहुत यूज होता है, इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं बच्चों। इसमें लाइक यूज होता है पहले तो, कंपैरिजन में, स्ट्रिंग कंपैरिजन में होता है ये, क्लियर है। लाइक यूज होता है, लाइक के साथ हम दो कैरेक्टर यूज करते हैं, एक होता है परसेंट। परसेंट का मीनिंग होता है अकरेंस ऑफ एनी कैरेक्टर, अकरेंस ऑफ एनी कैरेक्टर any number of time, any number of times including zero, including zero, क्लियर है। यानी अकरेंस ऑफ एनी करेक्टर एनी नंबर ऑफ टाइम इंक्लूडिंग जीरो, हो सकता है वो करेक्टर ना भी आए, कोई भी करेक्टर आ सकता है ए से जेड, मतलब कोई भी करेक्टर, क्लियर है। दूसरा, अब इसको एग्जांपल से समझेंगे, तो इसको समझ लेते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं यही वाला क्वेश्चन, लाइक परसेंट ए परसेंट, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ए से पहले भी कितने करेक्टर आ सकते हैं, ए के बाद भी कितने करेक्टर आ सकते हैं, या ए के बाद एक भी करेक्टर ना हो, ए के पहले एक भी करेक्टर ना हो, क्लियर है। तो इसमें इसका मतलब है सिंपली, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझूं, कहीं भी ए आ जाए तो मैं उसको सेलेक्ट कर लूंगा। नेम में कहीं भी ए आ गया तो मैं उसको सेलेक्ट कर लूंगा। स्मॉल ए केस सेंसिटिव होता है डेटा, तो कौन सा रिकॉर्ड सेलेक्ट होगा, आगे एंड लगा है, तो अगर मैं खाली इसी कंडीशन की बात करूं तो एक तो इंदिरा, उपासना, अनुभव, क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ, समझ आ गया सबको। परसेंट का मतलब अकरेंस ऑफ एनी करेक्टर एनी नंबर ऑफ टाइम इंक्लूडिंग जीरो। दूसरा करेक्टर होता है बच्चों अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का मतलब होता है अकरेंस ऑफ एनी करेक्टर वन टाइम, अकरेंस ऑफ एनी करेक्टर वन टाइम। अगर मैं आपसे कहता हूं राइट द क्वेरी टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड वेयर सेकंड कैरेक्टर इज ए, ध्यान से सुनेगा, वेयर सेकंड कैरेक्टर इज ए, बाद में कुछ भी आए पहले कुछ भी आए, सेकंड कैरेक्टर ए होना चाहिए। तो उससे पहले कितने कैरेक्टर आएंगे बच्चों, एक। तो अकरेंस ऑफ एनी कैरेक्टर वन टाइम, तो मैं यहाँ क्या यूज करूंगा, अंडरस्कोर या परसेंट, जल्दी से टाइप कर दो, अंडरस्कोर यूज करूंगा या परसेंट, अगर सेकंड कैरेक्टर ए बोल रहा हूं मैं तो। सर अंडरस्कोर लिखा बच्चों ने। वेरी गुड, अंडरस्कोर। अब वो कह रहा है सेकंड कैरेक्टर ए हो, बाद में कुछ भी हो सकता है, तो क्या यूज करूंगा, परसेंट। तो इसके कॉम्बिनेशन क्या क्या बने बच्चों, रा, मतलब जरूरी नहीं है के बाद जीरो भी हो सकता है, कोई भी कैरेक्टर ना हो, राम, रवि एंड सो ऑन, जरूरी नहीं आर से शुरू हो, और भी कई हो सकते हैं, क्लियर है। अब इस क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे नेम लाइक ए, मतलब ए कहीं भी हो नेम में, एंड, ये ध्यान देना है, एंड पहले में और था, एंड है, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी रिकॉर्ड सेलेक्ट होगा। एंड सैलरी इन, इनको समझ लीजिए, बिटवीन होता है एक रेंज के लिए, यानी सैलरी 6000 से 14000 के बीच में हो तो हम बिटवीन यूज करेंगे। इनका मतलब होता है सैलरी या तो 6000 हो या 14000 हो, ध्यान से सुनिएगा, सैलरी या तो 6000 हो या 14000 हो, तब मैं इनका यूज करूंगा। अगर मैं आपसे कहता सैलरी 6000 से 14000 के बीच में हो तो बिटवीन का यूज करूंगा। आप क्वेश्चन समझ लेते हैं, नेम में कहीं भी ए हो पहला पॉइंट, और सैलरी या तो 6000 हो या 14000, ढूंढना शुरू कर दीजिए। स्मॉल ए, स्मॉल ए है यहाँ पे, यस, इनमें नहीं है स्मॉल ए, यहाँ कैपिटल ए है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। स्मॉल ए इसमें है लेकिन सैलरी ना 6000 है और ना ही 14000, तो ये सेलेक्ट नहीं होगा। इसमें स्मॉल ए है, वेरी गुड, सैलरी 6000 है, करेक्ट है 6000 भाई, पहला रिकॉर्ड सेलेक्ट हो गया। अब इधर आ जाइए, इसमें भी ए है दो जगह, कोई दिक्कत नहीं, ए है लेकिन सैलरी 6250 है, सैलरी या तो 6000 हो या 14000 हो, सैलरी कितनी है 6250, तो ये भी सिलेक्ट नहीं होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कितने रिकॉर्ड सेलेक्ट हुए, एक रिकॉर्ड सेलेक्ट हुआ, और एक आंसर में कहीं नहीं दिया था, इसलिए नन ऑफ दीज। क्लियर है सबको? सूर्य का डाउट है तो यू कैन टाइप योर डाउट इन द चैट बॉक्स।
ठीक है सर। Okay. Now next question. पर एक बच्चे ने ए करा है। Okay, okay, I okay. also replied A, रचित का सी, अबे का ए, रजमनी का सी, नुपुर का ए, देव का सी, विनय ने सी। तो स्टूडेंट रिप्लाइंग सी एंड डी एज एन आंसर। मीनवाइल कुछ बच्चे ए भी कर रहे हैं। आंसर आ रहे हैं सर, बच्चों काफी बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं, इट्स वेरी गुड। Okay, स्टूडेंट आर okay. Answer. एडवाइज टू पार्टिसिपेट इन मैक्सिमम नंबर। कुछ का बी Okay, भी okay. आया सर अभी। Answer is B, sir. आज लेते हैं बच्चों आंसर बी क्यों है। देखिए, सबसे पहले वेयर ए डॉट एज, मतलब एज शुड बी ग्रेटर देन ऑल। ऑल का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। ऑल का मतलब होता है ग्रेटर देन ऑल का मतलब कोई भी कॉलम है उसकी वैल्यू ऑल के अंदर जितनी वैल्यूज है उन सबसे ग्रेटर हो। 35, 40, 26। ग्रेटर देन ऑल का मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर उस कॉलम की वैल्यू ऑल के अंदर जितनी वैल्यू उन सबसे बड़ी है तो वो रिकॉर्ड सेलेक्ट होगा। अगर किसी भी एक रिकॉर्ड से छोटी है, किसी भी एक वैल्यू से छोटी है तो वो रिकॉर्ड सेलेक्ट नहीं होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन। अब ये क्या कह रहा है, सबसे पहले इस अंदर वाली क्वेरी को सॉल्व कीजिए। वो एज सेलेक्ट कीजिए जहां पे लोअर बी डॉट नेम शुड बी श्रेया। अब बच्चों ध्यान देना, डेटा केस सेंसिटिव होता है। श्रेया का एस कैपिटल है, बाकी स्मॉल है। ध्यान से सुनेगा, श्रेया का एस कैपिटल है, बाकी स्मॉल है। और आपने बी डॉट नेम को लोअर के अंदर ले लिया, तो इसके तो सारे कैरेक्टर लोअर हो गए, कुछ भी वैल्यू दो आप। लेकिन श्रेया में एस कैपिटल है, तो ये कंडीशन तो कभी मैच होगी ही नहीं डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपने लोअर के अंदर दिया है और श्रेया का एस कैपिटल है, तो ये वैल्यू तो कभी मैच होगी ही नहीं। ठीक है, तो ये वैल्यू मैच नहीं होगी तो कितने रिकॉर्ड सेलेक्ट होंगे ग्रेटर देन ऑल में, 0। क्लियर है यहाँ तक, ग्रेटर देन ऑल में एक भी रिकॉर्ड सेलेक्ट नहीं होगा मतलब 0 रिकॉर्ड। अब ए डॉट एज शुड बी ग्रेटर देन 0। ऑल के अंदर कितनी वैल्यू, 1। तो जितनी, अब देखिए ए डॉट एज में 12 भी 0 से बड़ा है, 15 भी 0 से बड़ा है, 99 भी 0 से बड़ा है, तो कितने रिकॉर्ड सेलेक्ट हुए बच्चों, 3। क्लियर है सबको, जल्दी से यस टाइप कर दीजिए फिर आगे बढ़ते हाँ हैं सर, क्वेश्चन। दो बच्चों का आ गया। ओके क्लियर है ना, क्लियर क्लियर, यस यस। पुनीत सर, ओके। आई थिंक हाँ वी सर, शुड टेक अटेंडेंस बिफोर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप तो ले स्टूडेंट, लीजिए। हाँ, वी आर गिविंग यू 2 मिनट्स, आप अपने रोल नंबर टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। सर आई थिंक अब वी शुड मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ने टाइप ओके कर ओके दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टार्ट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉरी।
के आंसर आ रहे हैं, दे आर गिविंग ऑप्शन ए एंड बी, मतलब ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, एंड अराउंड 40-50 स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया होगा। ए डी, एक बच्चे का डी भी आया है, मयंक का भी आ रहा है, मीत ने बी बोला है, शिवांगी ने सी बोला, धनंजय ने ए, ओके अभय का ए, आर्या का ए। नाउ आंसर इज ए। तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक बार। हाँ भाई बच्चों देखो, लाइक है तो लाइक तो सबको क्लियर हो ही गया होगा, ऑल भी क्लियर होगा। अब क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं। ये कह रहा है सेलेक्ट बी डॉट आई डी फ्रॉम बी वेयर बी डॉट सिटी लाइक एल, मतलब एल आए आपकी सिटी में, तो सिटी में एल आए तो उसके लिए कौन सी टेबल में हम सेलेक्ट कर रहे हैं, बी में सर्च कर रहे हैं। तो बी में कहाँ कहाँ एल आ रहा है, दिल्ली में, मतलब दिल्ली में एल आ रहा है, दूसरे कोड में भी दिल्ली है तो उसमें भी एल आ रहा है, इसमें नहीं है एल, इसमें नहीं है। तो कितने रिकॉर्ड सेलेक्ट हुए ऑल के अंदर, मतलब कितनी आईडी आएंगी, बी डॉट आई डी, तो क्या क्या वैल्यू आएगी, 15,25। ये क्लियर है सबको? ओके। अब वो कह रहा है कि ए डॉट आई डी शुड बी ग्रेटर देन ऑल। ऑल के अंदर कितनी वैल्यूज हैं, 15 और 25 दो। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि वही रिकॉर्ड सेलेक्ट होगा जो इन दोनों वैल्यूज से बड़ा होगा। तो अब ए पर आ जाओ, टेबल ए का। टेबल ए की आईडी पहली कौन सी, 12। 12 15 से बड़ी है, नहीं, रिकॉर्ड सेलेक्ट नहीं होगा। अगर किसी भी एक वैल्यू से छोटी है तो रिकॉर्ड सेलेक्ट नहीं होगा। नाउ 31, वेरी गुड, 31 सेलेक्ट हो जाएगा। 99, वेरी गुड, 99 भी सेलेक्ट हो गया। तो टोटल कितने रिकॉर्ड सेलेक्ट हुए बच्चों, 2। क्लियर है सबको? आगे बढ़े। सर एक डाउट है बच्चे का, वो ये पूछ रहे कि व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल। व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल? बेटा ऑल के थ्रू हमने क्या किया, ऑल के थ्रू हमने कोड को छोटा कर दिया, क्वेरी को। नहीं तो अगर मैं ऑल का मतलब क्या है, ऑल का मतलब है कि जितनी भी वैल्यूज है उन सबसे बड़ा, जो भी हमने कंपैरिजन ऑपरेटर लिया है। अगर इसको मैं डायरेक्ट करता बिना ऑल के तो क्या लिखता, वेयर ए डॉट आई डी शुड बी ग्रेटर देन ऑल। का मतलब ये है कि जितनी वैल्यूज आई, लाइक दिल्ली, एक से ज्यादा वैल्यूज आई, एक से ज्यादा वैल्यूज आई तो उसको कैसे कंपेयर करोगे, एक से ज्यादा वैल्यूज आई तो उसको कैसे कंपेयर करोगे, x ग्रेटर देन y अगर हम लिखते हैं तो ये एक वैल्यू के लिए कंपैरिजन करते हैं। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ वैल्यूज से कंपेयर करना चाहते हैं, जैसे इन होता है, इन क्या करता है, x इक्वल्स टू y को चेक करता है और y की एक से ज्यादा वैल्यूज के लिए काम करते हैं हम। उसी तरह ऑल, इन तो काम करता है इक्वल ऑपरेटर के लिए, ऑल काम करता है ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरह के ऑपरेटर्स के लिए। इसलिए एक और ऑपरेटर होता है एनी, एनी भी काम करता है ग्रेटर देन, लेस देन के लिए। तो जब एक से ज्यादा वैल्यूज को मुझे कंपेयर करना है तो मैं क्या करता हूं, इन, ऑल, एनी, इनका यूज करता हूं। अगर इक्वल ऑपरेटर लगाना है, यानी जहां तो सैलरी या तो 6,000 हो या 14,000 हो, तो मैं इनका यूज करूंगा। सैलरी ग्रेटर देन सभी एम्प्लॉयज की सैलरी से, तब मैं ऑल का यूज करूंगा। सैलरी लेस देन 6 एम्प्लॉयज की सैलरी से, तब मैं एनी का यूज करूंगा। तो नंबर ऑफ वैल्यूज के अगेंस्ट अगर मुझे कंपैरिजन करना होता है तो मैं इन, ऑल, एनी का यूज करता हूं। क्लियर है? यस सर। क्लियर हो गया भाई? ओके ओके, आगे मूव करते हैं। हाँ, क्वेश्चन। सर चीकू मेरी बहन का नाम है सर। With this, जब बोलना नहीं है ये। लल्लू इज द, पंजू इज द। सर someone is doing कुछ बदतमीजी कर रहे हैं क्लास में। बट अगर नॉट एबल टू एड्रेस, किस बच्चे ने करा था, माइक ऑन।
बट अगर किसी ने देखा तो प्लीज सर मनु मित्तल। ओके यस सर, ये मानो बेटा क्वेश्चन समझ लीजिए, इस तरह से क्लास में न्यूसेंस नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन का? ओनली चीकू क्वेरी। क्लियर है? अब समझ लेते हैं इसको। देखो बच्चों, इसको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप आउटपुट टेबल को देखो और फिर इस क्वेरी से उनको मैच कराते हैं। कैसे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स इंफॉर्मेशन वेयर रीजन लोअर, यानी रीजन में जो भी वैल्यू कैरेक्टर्स होंगे वो सब लोअर में कन्वर्ट हो जाएंगे। लाइक टी, परसेंट टी। परसेंट टी का मतलब क्या हुआ? लास्ट कैरेक्टर शुड बी टी, रीजन का लास्ट कैरेक्टर टी हो। सही है भाई, ये तो यहां तक तो सही आ गए हम। एंड, बीच में एंड लगा हुआ है। अब ये कह रहे हैं सेल्समैन, सेल्समैन को अपर में कन्वर्ट किया। और लाइक परसेंट एन, इसका मतलब क्या हुआ? लास्ट कैरेक्टर एन हो, या लाइक एन परसेंट, या फर्स्ट कैरेक्टर एन हो। यानी वो रिकॉर्ड सेलेक्ट करने हैं जिसके रीजन में लास्ट में टी आए। सेल्समैन में या तो लास्ट कैरेक्टर कैपिटल एन हो या फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल एन हो, क्योंकि बीच में और लगा हुआ है। या तो लास्ट कैरेक्टर कैपिटल एन हो या फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल एन हो। तो सेल्समैन में लास्ट कैरेक्टर है फर्स्ट कैरेक्टर। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? निकोलस, निकोलस में क्या है आपका? निकोलस में एन, निकोलस में एन है आपका कैपिटल। क्लियर हो गया? पहला कैरेक्टर क्या है? निकोलस एन। अब सारे नेम को आपने ऑलरेडी अपर में कन्वर्ट कर दिया। एलन में लास्ट कैरेक्टर एन है, जॉन में लास्ट कैरेक्टर एन है, तो ये इसलिए सेलेक्ट हो गए। निकोलस में लास्ट तो एन नहीं है, लेकिन कौन सा कैरेक्टर एन है? फर्स्ट। तो ये क्वेरी सही है। अब आगे वाला चेक कर लेते हैं। आगे वाली क्वेरी यहीं फेल हो जाती है। वो कह रहा है लास्ट टू कैरेक्टर टी एच हो रीजन के, तो आउटपुट क्वेरी में लास्ट में एच कहीं है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? कौन सी क्वेरी करेक्ट है? चीकू। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 फ्लैश हो चुका है। यस सर, वी शुड मूव फॉरवर्ड। यस सर, विद डाउट मी। पलक ने सर रिप्लाई करा ए। ए आंसर आ रहे हैं सर। शुभांशी, हर्ष, देव ने सी करा है, निखिल ने डी, हिमांशी ने डी, ओके सर। मोहन के, अभय का ए, आदर्श का ए, अंजलि का ए, सुगंधा का ए, पल्लवी ए, श्रेया का ए, सिद्धार्थ का डी, ओके ओके अभिषेक का ए। एंड द आंसर इज सी। अब समझ लेते हैं इसको। यस स्टूडेंट, सबसे पहले ये समझना है कि एंड डेट में जहां जहां एंट्रीज नहीं है वहां क्या होगा? एंट्रीज ना होने का मतलब क्या है? या तो वैल्यू आपको पता नहीं है या वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो वहां पे क्या आता है? नल। या तो वैल्यू पता नहीं है या वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। नाउ यहाँ भी नल, यहाँ भी नल आएगा, जहां जहां ब्लैंक है वहां नल आएगा। अब देखिए, सबसे पहले एनवीएल फंक्शन को समझ लेते हैं। एनवीएल फंक्शन क्या कहता है? एनवीएल फंक्शन कहता है वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2, मतलब वैल्यू 1 कॉलम 1 में जहां जहां नल आया उसको रिप्लेस कर दो वैल्यू 2 से। वैल्यू 1 में जहां जहां नल आएगा उसको रिप्लेस कर दो वैल्यू 2 से। बट एक चीज ध्यान रखनी है, वैल्यू 1 और वैल्यू 2 दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। तो अब देखिए क्या होगा। एंड डेट, एंड डेट को हमने एनवीएल के अंदर लिया, जहां जहां नल होगा वहां क्या आ जाएगा? 20 अप्रैल 2015। तो एक तो यहाँ आएगा 20 अप्रैल 2015, ठीक है। एक इसके नीचे आएगा, जहां जहां नल है वहां 20 अप्रैल 2015 आ जाएगा। क्लियर है सबको? अब क्वेरी उठाते हैं। क्वेरी क्या कहता है? वेयर लेंथ ऑफ नेम 5 हो, एंड है तो दोनों कंडीशन ट्रू होना जरूरी है। एंड डेट
और स्टार्ट डेट, एंड डेट और स्टार्ट डेट का डिफरेंस 30 से कम हो, 30 दिन से कम हो। मेरी समझ आ गई? तो देखिए सबसे पहले मार्क, लेंथ नेम 4 है, सेलेक्ट नहीं होगा। मार्विन 6 है, सेलेक्ट नहीं होगा। बैली 6 है, सेलेक्ट नहीं होगा। मारिया, यस, मारिया के नेम लेंथ कितनी है? 3 to 5, लेंथ 5 है, तो ये वाली कंडीशन तो 2 है, लेकिन एंड डेट और स्टार्ट डेट का डिफरेंस 30 से कम है? नहीं। 1 मार्च और 15 अप्रैल 30 से कम नहीं है, तो ये भी सेलेक्ट नहीं होगा। एस्ले नेम लेंथ 6 है, नहीं होगा। एडगर नेम लेंथ 5 है, ओके। आगे वाली कंडीशन देखिए, एंड डेट और स्टार्ट डेट का डिफरेंस 1 मार्च 15 मार्च 30 से कम है, 15 दिन का डिफरेंस है, करेक्ट। तो एक रिकॉर्ड सेलेक्ट हुआ। अब डर्सी की लेंथ भी 5 है नेम की, और 1 अप्रैल और नल। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, जहां जहां नल होगा एनवीएल फंक्शन क्या करेगा, उसको वैल्यू 2 से रिप्लेस कर देगा, 20 अप्रैल 2015 से रिप्लेस कर देगा। 1 अप्रैल और 20 अप्रैल का डिफरेंस 20 लेस देन 30 है, जो करेक्ट है, तो ये वाला रिकॉर्ड भी सेलेक्ट हो गया। तो टोटल कितने रिकॉर्ड सेलेक्ट हुए बच्चों? 2। क्लियर है सबको? कोई डाउट है तो आप कर दो, अदरवाइज हाँ, यस यस सर, क्लियर हो गया। वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक सर ये क्वेश्चन हो पाएगा बस। हाँ जी सर। ओके ओके। तो बच्चों के आंसर आ रहे हैं। मनीषा ने सी बोला, मयंक ने भी, मोहित ने भी, शुभम का भी आ रहे हैं मैक्सिमम का। ओके ओके ओके। नाउ आंसर इज बी। समझ लेते हैं आंसर बी क्यों है। इसको समझने के लिए मुझे बस काउंट फंक्शन को समझना है। सबसे पहले तो काउंट फंक्शन क्या करता है? नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स काउंट करता है, ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यूज को काउंट करके रिटर्न करता है कि कितनी वैल्यूज हैं। तो सबसे पहला काम ये एग्रीगेट फंक्शन है, जो इनपुट में नंबर ऑफ रोज लेता है, आउटपुट में सिंगल वैल्यू देता है। तो ये कौन सा फंक्शन है? एग्रीगेट फंक्शन। नाउ अब काउंट के सिंटैक्स, पहला सिंटैक्स है काउंट स्टार, दूसरा सिंटैक्स है काउंट कॉलम नेम, ठीक है, और तीसरा सिंटैक्स है काउंट डिस्टिंक्ट कॉलम, ठीक है। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? काउंट स्टार सारे रिकॉर्ड्स को काउंट करेगा इंक्लूडिंग नल एंड डुप्लीकेट। काउंट स्टार विल काउंट ऑल रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग नल एंड डुप्लीकेट, ठीक है। तो अगर मैं इस पर काउंट स्टार लगाता हूं तो मेरा आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? काउंट कॉलम, अब काउंट के अंदर अगर मैंने कोई भी कॉलम दे दिया, जैसे मैंने दे दिया बैलेंस, तो ये क्या करता है? नल को एक्सक्लूड करता है, नल वैल्यूज को काउंट नहीं करेगा। क्लियर है? नल को एक्सक्लूड करेगा, एक्सक्लूड नल, लेकिन इंक्लूड डुप्लीकेट, डुप्लीकेट वैल्यूज को काउंट करेगा। तो देखिए अगर मैं बैलेंस की बात करता हूं, या सीआईडी की बात कर लेते हैं। सीआईडी में क्या है? 3 बार 1 आया है, 3 4 5 6 7, ठीक है, क्योंकि कोई भी नल नहीं है तो उसको एक्सक्लूड करने का सवाल ही नहीं है। तीसरा काउंट डिस्टिंक्ट कॉलम, मतलब ये एक्सक्लूड करता है नल को भी और एक्सक्लूड करता है डुप्लीकेट को भी। तो देखिए अब मैंने क्या लगाया, अब यहां पे आ जाते हैं, काउंट डिस्टिंक्ट सीआईडी, यानी डुप्लीकेट को एक्सक्लूड करना है, नल को एक्सक्लूड करना है। नल तो है नहीं, तो डुप्लीकेट आईडी 1001 कितनी बार आए? 3 बार, तो 1 बार काउंट होगा।
2 कितनी बार आए, 2 बार, 1 बार काउंट होगा। 3 कितनी बार आए, 2 बार, तो 1 बार काउंट होगा। तो टोटल CID कितनी हुई डिस्टिंक्ट, 3। अब आ जाइए बैलेंस पर। बैलेंस में डिस्टिंक्ट नहीं लगाया, केवल कॉलम नेम लिखा है, तो ये वाला सिंटैक्स तो सारे क्लियर है। तो बैलेंस को काउंट कर लीजिए, लेकिन काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 7। बट कितने बैलेंस काउंट करने हैं, जहां पे स्टेटस ए हो, यानी एक्टिव वाले। एक तो ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, 5। टोटल 5 रिकॉर्ड हैं। सबसे पहले उनमें डिस्टेंस CID लगाइए, तो 1 1 1 एक बार, ठीक है। 2 3 ये तो डिस्टिंक्ट है ही, तो ये कितनी बार आए, ये 3 बार आए। अब मैं बैलेंस पे जाता हूं। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने रिकॉर्ड है मेरे पास, 5। तो बैलेंस में अगर डुप्लीकेट वैल्यू भी आएगी तो वो भी काउंट हो जाएगी। तो कितनी वैल्यू हुई, 1 2 3 4 5। तो क्या आंसर आएगा, 3,5। तो ये काउंट के 3 वेरिएशन हमेशा याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। क्लियर है सब बच्चों को? यस सर, बच्चों को रिप्लाई आ रहा है, यस सर। ओके ओके ओके। दिव्यांशु का है नो। आई थिंक जिसकी भी इंडिविजुअल कुछ क्वेरी है, दे कैन वेट हियर एंड अदर मे लीव द सेशन। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है वो, बेटा टाइप कर सकते हो आप, या आप माइक भी खोल सकते हो, नो इशू।